आप सुरक्षित नहीं है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि प्रशासन, सरकार आपको सुरक्षा नहीं देगा। अगर कैमरे के सामने इस तरह से बदतमीजी की जा सकती है, कैमरे के सामने बदसलूकी की जा सकती है, कैमरे के सामने धक्का मुक्की हो सकती है, खींचकर बाहर निकाला जा सकता है, कैमरे के सामने कैमरे को तोड़ा जा सकता है, तो जिनके पास वो हथियार नहीं है, वो चीजें नहीं है, दिखा सके सच्चाई पश्चिम बंगाल की, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम महिलाएं कितने सुरक्षित है। सरेआम कैमरे के सामने धक्का मुक्की, मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन सरकार चुप है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है मीडिया कर्मियों के साथ, जरा अंदाजा आप ये लगाइए कि आम लोगों का क्या हाल होगा। आम महिलाएं, आम लड़कियां जो अपने रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए घर से बाहर निकलती होंगी, जो शिकायत करती होंगी दुर्व्यवहार को लेकर, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। जब एक महिला पत्रकार जो कि खुद अपने आप में स्वतंत्र होती, स्वच्छंद होती है, ताकतवर होती है, उसके पास अधिकार ये होता है कि वह सवाल पूछ सके, जब उसके साथ ये बिहेव किया जाएगा, ये व्यवहार किया जाएगा, तो आखिर बाकी जो सामान्य महिलाएं हैं, जो सामान्य युवतियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। देखिए, रिपब्लिक के तमाम रिपोर्टर्स, एंकर्स अभी भी मौजूद है यूनिवर्सिटी के सामने, सवाल पूछ रहे हैं चीख चीख कर कि आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों, आखिर क्यों पिंकी को इतने घंटों तक कमरे में बंद। আমি দেখতে চাই এই দেশ বিরোধীদের, গোটা দেশ থেকে অর্ণব গোস্বামী এই টুকরো টুকরো গ্যাংকে দেশ ছাড়া করেছে। আমরা আজ বলছি রিপাবলিক বাংলার দায়িত্ব নেবে। বাংলার পুলিশ পাচ্ছে না, বাংলার সরকার পাচ্ছে না, ব্রাত্য বসু পাচ্ছে না, রিপাবলিক বাংলার দায়িত্ব নিয়ে বলছে দেশ বিরোধীদের এই বাংলা থেকে ছাড়া করে থাকবো। আজ দিদিদের উপর আক্রমণ করছে, কি ভাবছে দিদিটা একা রয়েছে? না, দিদিদের সঙ্গে গোটা রিপাবলিক রয়েছে। দিদিটা, আমি পুরো ঘটনা আবারও জানতে চাই। আমরা দালাল, আমরা মানুষের দালাল, আমরা দেশের দালাল। আমি যখন নিজের কাজটা করে এখান থেকে ফিরে যাই আমার গাড়ির উদ্দেশ্যে, তখন আমাকে দাঁড়িয়ে এখানে ইফটিজ করা হয়। কটা ছেলে, তার সাথে 3-4টে মেয়েও ছিল, যাদেরকে আমরা ফ্রেমে বারবার দেখিয়েছি। তারা সমানে আমাকে দালাল বলে দাম জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপরে বলা হয়, তারপরে যখন ফিরে আসি তখন আবার ভিডিও করা হয়। কিন্তু আমার যখন ওরা উল্টে ভিডিও করে, সেই ভিডিও আমরা যখন পাল্টা করি, সেই ভিডিও আমাদেরকে বলা হয়, শাসানো হয় যে আমরা যেন এই ভিডিও ডিলিট করে দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা ভিডিও ডিলিট করবো কেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এমন ঘটে যেটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে? একদমই। আমি ওদেরকে বারবার লাগাতার প্রশ্ন করি, তোমরা এইসব দেওয়ালে লিখছো কেন? এই অ্যান্টি গোটা বাংলার মানুষ দেখুন, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যারা দেশ বিরোধী কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে যুব শক্তির হাত দেখুন, এ হাত দেখুন, দেখুন, ভয় পান আপনারা, ভয় পেয়েছেন, এটা আমাদের ভালো লাগছে। এবার দয়া করে বাড়িতে গিয়ে বলুন, বাবা মার পা ধরে বলুন আমরা ভুল করেছি, আমরা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে ভুল করেছি, জাতীয় পতাকাকে অপমান করে ভুল করেছি। এই শক্তিটা দেখুন, এটা যুব শক্তি, বাংলার যুব শক্তি, এই বাংলা নেতাজির বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা। সে বাংলায় নাকি বিবেকানন্দকে চেনে না, এখানে দাঁড়িয়ে বলছে, সাহস হয় কি করে? আমরা বলছি আজ লড়াই আজ থেকে শুরু, আজ থেকে আমরা বলে দিলাম আমরা এই যাদবপুর থেকে তাড়িয়ে ছাড়বো, এই দেশ বিরোধীকে তাড়িয়ে ছাড়বো। রিদ্দা বলো, পিঙ্কি তুমি হচ্ছিল সে সময়, রিদ্দা বলো কি হচ্ছিল? তারপরে প্রভিসি বাইরে আসে, প্রভিসিকে তারা বলে যে আমি যেহেতু প্রশ্ন করি যে অ্যান্টি ন্যাশনাল স্লোগানস কেন দেওয়ালে লেখা নেই আমাদের, সেইটা নিয়েই তারা বলে যে আমরা বলবো না তোমাদের, আর তোমাদের এই ফুটেজ ডিলিট করতে হবে। পরে আমাদের আরো দুজন সাংবাদিক বন্ধু পিঙ্কি দি এবং ভাস্কর দারকেও এই জন্যই আটক করে রাখা হয় ভেতরে। এবং সুকেন্দু, আমি দেখলাম যে দীর্ঘক্ষণ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলে একই সঙ্গে রেজিস্ট্রারের ঘরেও আটক হয়ে গেলে। একদমই সুকেন্দু, এবং এটা নজিরবিহীন। আমি জানি না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্ট্যাটিউটে কোন মিটিং এ এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ মাধ্যম খবর করতে পারবে না, এমন কোন সার্কুলার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখলেন, কার্যত আমরা ডিটেন হয়ে রইলাম যেভাবে থানাতে ডিটেন করে রাখা হয়, এবং আমাদের স্পষ্ট বলা হলো তুমি কোনোভাবেই
এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন লাইভ টেলিকাস্ট করতে পারবে না। কারণ আমি বলেছিলাম আমাদের বস बता रही है कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर महिला मुख्यमंत्री है, वहां पर सवाल पूछने पर इस तरह का बर्ताव किया जाता है पत्रकारों के साथ। क्या ममता बनर्जी ऐसा ही चाहती हैं कि वो जो मनाए करती रहें और उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए? क्या इस तरह का शासन चाहती है वो? क्योंकि पत्रकारों का हक है प्रियंका कि वो सवाल पूछें, और अगर सवालों का जवाब नहीं है तो यूं ही हम सवाल पूछते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत की टीम को डराने का प्रयास किया गया है, अब यहाँ से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक ममता राज में, ममता बनर्जी के बंगाल में पत्रकारों को बार बार रिपब्लिक भारत की पत्रकारों को रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर ऐसे ही डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। इसको लेकर अब लगातार आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसी होता है। सलोनी से पहले भी हमने देखा था रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर संतूपान को किस तरीके से डराया गया था, और आज हमारी महिला पत्रकार को धक्के मारकर वहां से भगाया गया, हाथापाई की गई, मारपीट की गई। इसको लेकर लगातार नाराजगी उठ रही है और ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों ममता दीदी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला पत्रकारों पर इस तरीके से डराने धमकाने का काम होता है। ये सुनिश्चित कैसे करेंगी अच्छा शासन अगर ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं? क्यों इनको इतनी दिक्कत हो जाती है जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछना तो हमारा अधिकार है, हम तो प्रश्न पूछेंगे। आपके पास जवाब नहीं है, यानी आपके मन में कोई खोट है, तभी आप जवाब नहीं दे पा रहे, और यही हुआ है। आज हमारी एक बड़ी टीम जाधवपुर यूनिवर्सिटी पहुंची, हमारी महिला पत्रकार वहां पहुंचती है, रिपब्लिक बांग्ला की जो हमारा सिस्टर चैनल है उसकी टीम वहां पहुंचती है और सवाल पूछती है। सवाल इसलिए जिससे कि हम दर्शकों को सच्चाई दिखा पाए, सवाल इसलिए क्योंकि सवाल जरूरी है। शासन से सवाल नहीं होंगे तो आखिर कौन पूछेगा? ममता बनर्जी को ऐसा शासन चाहिए जहां पर उनकी तूती बोलती रहे और कोई प्रश्न न करे। तो रिपब्लिक के साथ ये नहीं चलेगा, सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, सामने तो आना ही पड़ेगा, और हम तब तक पूछेंगे जब तक आप जवाब नहीं देती। बिल्कुल, और देखिए सवाल बड़ा ये भी है कि रिपब्लिक बांग्ला की टीम जब ये पूछ रही थी कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, तो वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स ने अपना आई कार्ड भी नहीं दिखाया। तो आखिर कौन थे ये उपद्रवी जिन्होंने पत्रकारों को डराने का काम किया, उनको उनकी ड्यूटी करने से रोकने का काम किया? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बार ममता दीदी के राज्य में इसी तरीके से डराया जाता है, पत्रकारों के मुंह पर ताला लगाने का प्रयास किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, कवरेज नहीं करनी की जाती है, और वहां पर हर बार धक्के देकर भगाने की कोशिश होती है, और हर बार सलोनी टारगेट सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ही किया जाता है। आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सच्चाई दिखाता है, और उस सच्चाई को छिपाने का काम ममता बनर्जी के बंगाल में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमने देखा है संदेश खाली की घटनाओं, अलग अलग घटनाएं हो, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती नहीं रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है। और आप सोचिए कैमरे पर इस तरह का बर्ताव अगर हो रहा है तो कैमरे के पीछे क्या होता होगा बंगाल में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है बंगाल में? क्या इसी तरह का बर्ताव होता है सवाल पूछने पर? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि आप जरूरत है